Okay, got it. And if people are entering, Nehal, you'll have to also just admit them now. Okay. Okay, guys, you see, technology is far ahead and our Nehal is brilliant at it. I had to ask how to do it, but she could just do it like this, like this. So kudos to her. And just 1 minute to go. And I hope all of you are geared up for this beautiful session with Nehal and Seema. And we are also lucky we have already got Dr. Sukhbir Kaur with us, who's the brainchild behind INR. Dr. Kaur, should we begin at 6:35 sharp? Yes, we can begin at 6:35. Okay, let's adhere to time. I think just a minute to go and let's start the session. Okay, it's 6:35 by my watch. Everybody, a very, very warm welcome. In most parts of India, it's chilling cold, whereas where Nehal and Seema ji are, they are enjoying a wonderful weather in Mumbai, and we are all shivering. But a very, very warm welcome to each one of you. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्वेता, और आज C2C सीरीज का सेकंड सेशन है जिसका नाम है संघर्ष संघर्ष. बहुत ही खास है ये सेशन. क्यों खास है ये अगले 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले I would like to welcome Dr. Sukhbir Kaur, the brainchild behind INAD. She is an established academician, a budding author, and someone who advocates experiential learning. इनका मानना है कि किताबों के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, और उन अनुभवों को जब हम अपने उन एक्सपीरियंसेस को जब हम अपनी जिंदगी किताब में जोड़ लेते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ओवर टू यू डॉक्टर कौर. आप प्लीज सबको बताएं आयनाद का मिशन और विजन. So, welcome everyone to this second session of ours in C2C series. INAD started with a soul purpose of caring for caregivers. तो हमारे साथ बहुत सारे caregivers हमेशा ही रहते हैं, बट हम उनकी जान पहचान नॉर्मल व्यक्तियों की तरह कर ही नहीं पाते हैं. So this INAD is brought up with an intention of caring for the caregivers. We did our first milestone completed in the month of November last year. We were able to touch 100 lives, but now we are planning to touch 1,000 lives till March this year. So this is the mission right now. And what we want to do is we want to provide support system to our caregivers as of now in India only. And in this series, I am really very delighted that we have both Nehal and Seema Tiwari with us today for a wonderful session. And I would also like to take an opportunity to introduce Shweta. Shweta, आप तो यहाँ की सूत्रधार हैं, तो इसलिए आपको बिना इंट्रोड्यूस किए तो काम चलेगा नहीं. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि श्वेता है हमारी कम्युनिकेटर, कनेक्टर और साथ में है क्यूरेटर. तो ये एक बहुत ही काबिल इंसान है और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब कजिन कम दोस्त है. तो दोस्त पहले कहना चाहूंगी, बाद में ये कजिन है मेरी. And one more thing about her, she has recently come up with her a chapter in her book named Real with Real, and I'm so happy. Shweta, please take over. Thank you so much for the beautiful introduction, Sukhbir. आगे आज मेरी बात नहीं होगी. आज हमारी खास मेहमान है नेहल और सीमा. इन दोनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. और इससे पहले कि वो कुछ भी बोले, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है. तो these two girls, they really like to swing together. इन्होंने प्रॉब्लम्स में पॉसिबिलिटीज को ढूंढा. ना सिर्फ ये माता एक माँ और बेटी हैं, ना सिर्फ ये दोस्त हैं, बल्कि एक मेंटी और मेंटोर भी हैं. अगर मैं बात करूं सीमा की, तो ना सिर्फ एक माँ है बल्कि एक वर्किंग मदर है. शी इज द जनरल मैनेजर एट MTNL Mumbai, and Nehal is a consultant with EY, Ernst & Young जैसी बड़ी संस्था के साथ नेहल वर्क कर रही हैं. तो a very very warm welcome to both of you. You can unmute yourself for today's session.
Thanks a lot. Thanks a lot for lovely introduction. And thanks You're a lot always, for calling us here. no, not at all. You deserve it all. And you're both lovely and you're both looking lovely also. तो सबसे पहला सवाल आपसे सीमा जी. थैंक यू नेहल. सबसे पहला सवाल आपसे सीमा जी कि ऑटिज्म क्या है. बहुत सारे लोगों को पता होगा बट जिन्हें नहीं पता उनके लिए क्लियर कर देते हैं कि व्हाट इज ऑटिज्म. ऑटिज्म इज एक डिसऑर्डर है इन विच एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे बच्चों का सोशल बिहेवियर जो होता है वो इम्पैक्ट होता है. कई बार करीबन 60% केसेस में बच्चा बोल नहीं पाता है, पर बाकी के केसेस में बच्चे बोल पाते हैं. एंड उसमें ये है कि उनका सोचने और काम करने का जो तरीका होता है वो हमसे अलग है. उनके बहुत सारे कई बच्चों को 7 स्किल्स होते हैं, मतलब हमसे काफी चीजें उनकी ऊपर होती हैं, बट जो उनका IQ लेवल होता है वो हमारे जैसा सपाट नहीं, अनइवन होता है. मीन्स उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हमसे बहुत ज्यादा होती हैं और कुछ हमसे बहुत पीछे होती हैं. उनके जो सोशल स्किल्स हैं या जमाने को पढ़ने के स्किल्स हैं वो हमसे कमजोर होते हैं. कुछ बच्चों को उसमें कई तरीके के और प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे विद दिस उनको मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है. कुछ बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं आइदर टुवर्ड्स लाइट और टुवर्ड्स साउंड. सो दे फील उनको बाहर जाने में ऐसा लगता है कि कोई उनके कानों पे नगाड़ा बजा रहा है, तो दे वांट टू रिमेन एट होम. तो इट्स अ फुल स्पेक्ट्रम. किसी बच्चे को प्रॉब्लम ज्यादा होती है और किसी को प्रॉब्लम कम होती है, बट सोशल स्किल्स लगभग हर एक बच्चे के इम्पैक्टेड होते हैं. थैंक यू सो मच. आपने इतनी अच्छे से ऑटिज्म को समझाया. तो सीमा जी, पहली बार आपको कैसे पता चला कि नेहल इस स्पेक्ट्रम में आती है? जब भी नेहल बॉर्न हुए तो उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. बिफोर डिलीवरी आल्सो एवरीथिंग वाज नॉर्मल. शी वाज अ नॉर्मल, उसका बर्थ भी नॉर्मल था. बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि जो उसके माइलस्टोन, मतलब जो माइलस्टोन से जैसे पलटना बैठना, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. बट जब हम उसके पास जाते थे तो वो हमको नहीं देखती थी, वो पलट जाती थी. मतलब वो ऐसा लगता था कि वो हमारे पास नहीं आना चाहती है. वो फैन से बेबल करेगी, वो अपने टॉयज को हाथ पैर मार के चलाएगी, बट एज सून एज हम उसके पास जाएंगे वो आई कांटेक्ट अवॉइड करेगी. हम जैसे वो 4 मंथ की हुई, 4.5 मंथ की, तो मैंने उसको क्रेच में छोड़ना चालू किया. देयर ऑल्सो बहुत हैप्पीली जाती थी, ऐसा जैसे बाकी बच्चे होते हैं ना कि रोते हैं जाने में कि मम्मी ने क्यों छोड़ दिया. और जब मैं उसको पिक करती थी तो देयर वाज नो रिएक्शन फ्रॉम हर कि मुझे क्यों छोड़ा था. मींस देयर वाज नो 1-to-1 कनेक्ट. मतलब उसके लिए मैं लगभग थी ही नहीं. ठीक. तो फिर उसकी स्पीच नहीं आ रही थी, 1 ईयर की हो गई, बैबलिंग भी बहुत कम थी. देन वी स्टार्टेड विजिटिंग उस समय डॉक्टर्स के पास में, बट उस समय ऑटिज्म का नॉलेज बहुत कम था. एंड जो उसके एक्शंस थे वो उसके एज के बच्चों से काफी आगे थे. मीन्स बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से वो खेलती थी. तो डॉक्टर्स हमको वो कर देते थे कि देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लोग ओवर एंथुसियास्टिक पेरेंट्स हैं. आफ्टर दैट we came to Mumbai, and यहाँ पे जब भी उस समय तक भी she was 2.5 and there was no speech, even no mama papa, and there was no emotional connect. वो पूरी तरीके से ह्यूमन कनेक्ट को अवॉइड करना चाहती थी. वो अपना खेलेगी, खुश रहेगी, बट आप मत आसपास जाओ. अगर आप आसपास हो तो आप उसके लिए ट्रांसपेरेंट टाइप के हो, मीन्स वो आपके सी थ्रू करेगी. सो इस तरीके से हम लोग जब मुंबई आए, देन उसका डायग्नोसिस हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस लेवल वाज मोर, एंड बाय दैट टाइम शी वाज 2.5. देन शी वाज डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म. जी सीमा, यहाँ हम जानना चाहेंगे कि आप मुंबई से पहले कहाँ रहते थे? हम इंदौर में रहते थे और भोपाल. इंदौर और भोपाल में हम दोनों जगह दिखाया था वहाँ पे. तो जो लोग छोटे शहरों से ज्वाइन करें, छोटे यानी टियर 2 टियर 3 सिटी से, मैं बताना चाहूंगी कि नेहल और सीमा लगभग 20 साल पहले, अगर मैं सही हूं तो, मुंबई आए थे. पर आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में इतनी अवेयरनेस नहीं है.
हालांकि 20 साल पहले से तो काफी बढ़ गई है, लेकिन एक कंप्लीट होलसम पिक्चर या नॉलेज आज भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आयनाद के माध्यम से और आपके माध्यम से जो लोग हमसे अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, यानी कि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग जयपुर से जुड़े हैं, कुछ लोग लखनऊ से जुड़े हैं, कुछ लोग और शहरों से, पंजाब से जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताएं ताकि वो लोग को और इस अनुभव को बहुत ही सुखद बना सकें। तो यहाँ पे मैं सीमा पहले जानना चाहूंगी कि किसी भी माँ के लिए ये बात जानना कि उसका बच्चा एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम में है, आपका क्या रिएक्शन था, आपने क्या महसूस किया? पहले तो हम लोगों को लगा कि मुझे और मेरे हस्बैंड को कि मतलब सारी दुनिया खत्म हो गई है, क्योंकि पहले जब हम उसका डायग्नोसिस हुआ उस क्षण तो हमें पता नहीं लगा कि क्या है ये शब्द, क्या है शब्द के मायने क्या है। बट जब उसके बारे में पढ़ा, उसके सेशंस अटेंड किए, तो उस समय इवन जो इंटरनेट पे जानकारी उपलब्ध थी वो बड़ी नेगेटिव थी, मतलब हमको बहुत होप नहीं दिया, तो हम लोग लगभग टूट से गए। फिर उसके बाद हमने उसको छुपाना चालू किया, लोगों को बताते नहीं थे कि वो कुछ अलग है। बट जैसे वो क्रैश में रहती थी तो उसके बिहेवियर से, या वो जब उसको कुछ नहीं करना है तो चूंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है तो वो चिल्लाती थी, तो हम लोगों का स्ट्रेस बढ़ता गया कि हम कितना छुपाएं। वी चेंज्ड अवर क्वार्टर, कि हम नए घर में आ गए कि किसी को पता नहीं लगे, बट वो जो एक मेरा स्ट्रेस था वो बिल्टअप होता जा रहा था। Then finally one day we thought कि if we will not accept our child, who else will do? दुनिया से हम कैसे सोचेंगे कि वो हमारे बच्चे को एक्सेप्ट करे। तो उस दिन आई ओपनड अप, आई स्पोक टू माय ऑफिस पीपल। हमने बताया कि नेहल का ये डायग्नोसिस है, उनको ऑटिज्म के बारे में बताया, हमारे परिवार वालों को पूरा डिटेल में बताया कि ये सब क्या है, वो क्यों सबसे अलग है, एंड हमारे पड़ोसियों को बताया। तो वो जो घर में उसके चिल्लाने से जो मुझे स्ट्रेस होता था, एंड उस चीज को वो यूज करती थी, उसको लगता था कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो अभी मम्मी मान जाएगी, तो वो शी स्टार्टेड यूजिंग दैट। तो वो स्ट्रेस गया और हमारा उसके पीछे लगना बंद हो गया कि तुम अच्छा चिल्ला रही हो ना, तो कि चिल्लाओ कोई बात नहीं, पर अगर तुम गलत हो तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो वो एक एक्सेप्टेंस आने में बहुत टाइम लगा हमको, मैं कह सकती हूँ अराउंड 2 years लगे होंगे। वो 2 year हमारी जिंदगी के सबसे कठिन साल थे, सबसे कठिन, क्योंकि उसमें सिवाय हम रोने और कुछ नेगेटिव सोचने के अलावा कुछ कर नहीं पाए, एंड हमको सपोर्ट भी नहीं ले पाए बिकॉज वी वर हाइडिंग। तो आई कैन से कि जिस दिन मैं ओपन अप हुई उस दिन ऐसा दिमाग पे से एक बर्डन हट गया, एक बोझ उतर गया दिल पे से। तो बहुत ही खूबसूरत बात कही है सीमा ने कि जब तक हम चीजों को छुपाते हैं, औरों से छुपा रहे होते हैं, खुद से ही एक जंग लड़ रहे होते हैं, तो हम बाहर वालों को कैसे कुछ समझाएंगे? जब तक हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो किस तरह से हिम्मत जुटा के एक ढाल बन के अपने बच्चे के लिए खड़े हो पाएंगे? और ये जो सीमा कह रही हैं वो मैं एक एक शब्द महसूस कर सकती हूँ, और मैं ऐसा भी समझ रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनमें से कई लोग यही चीज महसूस करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये हमारे सामने रोल मॉडल्स हैं। सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला माइलस्टोन किसी भी चीज को अचीव करने के लिए ये है कि हम उसे एक्सेप्ट करें। वो प्रॉब्लम है जब हमें पता चल जाएगा, जब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नेहल, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाय करके नेहल, आपको लगता है कि आप औरों से अलग हैं? Do you think we are different from others? No, I don't feel that. I'm different from others. I don't feel. So beautiful, Nehal. And I think my heart goes out for this answer for her. Every child is unique and they feel they are whole and complete. हम आसपास वाले उन्हें महसूस कराते हैं कि आप अलग हैं। नेहल, superb. I think your one line is a bigger inspiration for everybody, that you are like anybody else. आ जाओ भाई, मैं आप सबकी तरह ही हूँ। तो फिर सीमा जी, इसके आगे आपने क्या करा स्कूल के बारे में? क्योंकि एक जैसे लोगों को पता चल गया, लेकिन आपने बताया 2-2.5 साल के बाद, अब 2 साल निकल चुके थे, 4-4.5 की एज होती है नॉर्मली, हम बच्चों को 3-3.5 में स्कूल डालते हैं। फिर आपने क्या करा स्कूलिंग के लिए? एक्चुअली जैसे उसका डायग्नोसिस हुआ हमने उसकी थेरेपीज चालू कर दी। तो जो थेरेपीज थी उसमें
काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, पैसा भी काफी लगता है। तो उसको करीबन 4.5 आवर्स पर डे का थेरेपी होता था। उसके साथ में हमने उसको स्कूल में एनरोल किया। तो स्कूल में जो पहला स्कूल था वहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ लाइक दे वर नॉट अवेयर अबाउट ऑटिज्म, बट दे क्लेम्ड कि दे वर अवेयर। तो वहाँ पे दे डिडंट गिव सपोर्ट, तो उसका बिहेवियर बहुत इश्यूज बढ़ गए, क्योंकि वो दे वर इग्नोरिंग हर और दे वर ट्राइंग टू पुट हर लाइक उसको हाथ में टेप लगा के बिठा देते थे। मीन्स वो उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो शी सफर्ड अ लॉट। बट साथ में थेरेपीज भी चलती रही। देन फाइनली एक स्कूल में, यहाँ पे एक इंक्लूसिव स्कूल है, उसमें शी गॉट एडमिशन, and from that play group only that was attached to that school, mainstream school, वहाँ पे they have the facility of counselor, and उनको autism के बारे में knowledge था, and they allowed me shadow teacher। तो शेडो टीचर होने से ये होता है कि जो मेन टीचर होती हैं स्कूल में, उनके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। मेनली आप मान लें जो स्कूल में टीचर्स होती हैं वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, उनका सैलरी बहुत कम होता है, वो एक लेवल से ज्यादा स्ट्रेच करना नहीं चाहती हैं आपके बच्चे के लिए। तो अगर आप शेडो टीचर देते हैं तो उनके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। दूसरा, आपको अपने बच्चे का अगर एकेडमिक्स साथ में आप रखते हैं, एकेडमिक्स, एक मिनट, आई विल जॉइन अदर पीपल। ओके, व्हेन आप एकेडमिक्स पे हम लोग काफी उसका ध्यान देते थे। तो उसमें होता ये था कि टीचर के ऊपर जो बेसिक बर्डन है एकेडमिक्स का वो नहीं पड़ता था। तो अगर जैसे नेहल क्लास में से जो मेनली इन बच्चों का होता है, तो वो टीचर की बात नहीं सुनते, बिकॉज दे लव टू चैलेंज। वो टीचर को चैलेंज करना पसंद करते हैं, बिकॉज दे वांट अटेंशन, कि आप उन पे अटेंशन दो, तो वो भागेंगे, चौक खा जाएंगे, मीन्स ऐसी चीजें करेंगे कि टीचर बस उनको Just a तो minute. इन Can I दैट request Sachin ji to please mute them? जो बोल नहीं रहे, Sachin and Sumiti, please mute yourself. Yes, thank you so much. जी, sorry to cut you. नो प्रॉब्लम। तो उसमें नेहल के साथ में जो शेडो टीचर होती थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि वो नेहल को, अगर वो क्लास से उठ के भागने की कोशिश कर रही है तो उसको पकड़े, क्योंकि प्ले ग्रुप वगैरह में क्या, मतलब जूनियर केजी वगैरह में क्या होता है कि आपका बच्चा भागा तो बाकी बच्चे उसके पीछे भाग लेते हैं, तो वो बड़ा एक गेम हो जाता था। तो इसीलिए शेडो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो, अगर वो नहीं कर रही है, वो देख नहीं रही है, तो उसको गाइड करो कि नेहल लुक देयर, नेहल फिनिश योर वर्क। सो लाइक दैट, उसके कारण वी वर वेरी लकी कि हमको लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट मिले। मतलब इवन आवर हाउस होल्ड सपोर्ट, इवन जो स्पेशल टीचर्स हैं वो हमको बहुत अच्छे मिले। तो हुआ ये कि उस टीचर ने ऐसा खुद को पोजीशन किया कि वो 2 साल में उसने ग्रेजुअली नेहल को इंडिपेंडेंट बना दिया। जबकि नॉर्मली ऐसा होता है कि कनिंग दिमाग होता, ऐसा होता है कि मैं अपने पे डिपेंडेंट बनाऊं उसको, बट शी वाज सो नाइस कि विद इन 2 years स्कूल सेड कि नाउ नेहल इज सिटिंग एट वन प्लेस, शी इज फिनिशिंग हर वर्क, नाउ वी डोंट नीड अ शेडो टीचर। तो बट ये है कि आपको एज पेरेंट्स उसके एकेडमिक्स का अगर आप ध्यान रखे रहेंगे और उसके साथ में शेडो टीचर रखेंगे टू स्टार्ट विद, एंड धीरे धीरे जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा स्कूल, इट्स अ टू वे थिंग। आपका बच्चा स्कूल से कंफर्टेबल हो, स्कूल बच्चे से कंफर्टेबल हो, तब आप जो है आप शेडो टीचर को हटा सकते हैं। एंड दूसरा, नेवर फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर टीचर्स, क्योंकि अगर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, बट अगर आपके बच्चे के लिए उस टीचर ने एक भी एक्स्ट्रा एफर्ट लिया है, देन प्लीज अप्रिशिएट दैट। राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल कि आपके टीचर ने इतना अच्छा ये किया है। तो व्हेन यू बिल्ड सम पॉजिटिव ऑरा अराउंड योर चाइल्ड कि हम कुछ अच्छा करेंगे, तो उसका फीडबैक प्रिंसिपल तक जाएगा, तो टीचर्स बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप टीचर्स को वो पकड़ा, मतलब यू नीड टू ब्रीफ देम स्लाइटली कि हमारा बच्चे को ये आप कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू मेंटेन अ फेथ ऑन देम,
एंड अगर आपको लग रहा है कि ये टीचर अच्छे से नहीं कर रही है, मेरा बच्चा पीछे जा रहा है, मेरे बच्चे के बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, देन इमीडिएटली टेक इट अप। बिहेवियर इश्यूज नहीं बढ़ने चाहिए बच्चे के स्कूल के कारण। अगर उसके इश्यूज बढ़ रहे हैं, देन यू हैव टू जस्ट रीएनालाइज होल थिंग कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। चेंज द स्कूल, चेंज द टीचर, और whatever, change the subject, ask for relaxations। एक लिमिट के बाद बच्चे को पुश मत करिए। बच्चे को पुश तो करना ही पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ, वो तो आप न्यूरोटिपिकल बच्चों को भी करते हैं। आप अपने, ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म नहीं है तो आप पुश नहीं करते हैं, आप पुश करते ही हैं। तो एक लेवल तक बच्चे को पुश करिए, बट अगर उसके बिहेवियर इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसके सेंसरी इश्यूज बढ़ रहे हैं, देन उसके बारे में नोट्स मेंटेन करके रखिए। कि नोट्स एक मैं बताना चाहूंगी कि अपने बच्चे के डायग्नोसिस से लेके आप हमेशा उसके नोट्स मेंटेन करके रखिए कि ये जब मतलब whatever you think, just write one page उसके बारे में। It helps। जब आप पीछे डेट के साथ में जाते हैं तब आपको प्रोग्रेस भी पता लगती है, एंड आपको पता लगता है कि मेरी ये स्ट्रेटेजी इस चीज पे काम की थी। जी, तो लाइक दैट वी मेंटेन नोट्स फॉर द स्कूल। जी, सीमा जी ने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं। मैं जल्दी से दो तीन रेट्रिएट कर दूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत चीजें बताई हैं। पहली चीज, एक्सेप्ट कर लीजिए, स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर लीजिए, उस स्कूल में डालिए जहां आपको शैडो टीचर मिल जाए। उसके बाद अपने बच्चे की प्रोग्रेस को डे टू डे कहीं पर नोट डाउन करिए, अपनी मेमोरी पे मत छोड़िए। बिकॉज जब आप नोट करेंगे तो यू कैन गो बैक एंड actually show the track record, not just to the teacher but also for your own reference and also for medical and therapeutic purpose। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये तो थी सीमा जी की बात। नेहल, तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा था? I want to know from you, how was your experience with the school? In school, some boys bullied me, but not girls. And I went for field trip from 5th to 10th standard in secondary school. And I won so many prizes in music, swimming competition. In school, friendship was not there. And from senior KG to 10th standard, I studied at Chiti Somani school. And I studied 11th and 12th standard in Kopi Pilla Memorial School, and they took extra efforts in teaching me practicals. Teachers, and whenever I face problem, I used to complain to the teacher, but the teachers are very nice. वेरी नाइस नेहल। तो आपको स्कूल में फिर मजा आने लगा, और मुझे पता चला कि आपने साइंस ली थी। तो साइंस आपको मम्मा ने दिलाई थी या आपने खुद चूज किया था, या दोनों ने मिलके डिसाइड किया? I have chosen science because I found history, civics difficult, but I found physics, chemistry, and maths easier. या तो नेहल बहुत बढ़िया डिसीजन मेकर भी है। देखिए, नेहल को पता चल गया कि उनके लिए हिस्ट्री और सिविक्स डिफिकल्ट है, तो उन्होंने झट से साइंस ले ली। सीमा जी, आई वांट टू नो कि एज अ मदर तो आपने बहुत खूबसूरत रोल निभाया ही है, बट आप किस किस्म का माहौल, जैसे आपने बोला आपकी हाउसमेट बहुत सपोर्टिव है या फ्रेंड्स एंड फैमिली है, तो किस तरह से आपने बताया, आपने उनसे शेयर करा, पर क्या माहौल दिया जो इसको पुश करता रहा, स्पेशली जो लोग एनवायरनमेंट में आसपास है? बिकॉज टू माय अंडरस्टैंडिंग इन ऑटिज्म, एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले होता है कि एक्सेप्टेंस बाय ग्रैंड पेरेंट्स। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो उस जमाने के नहीं है जिनको जो डिसेबिलिटी के लिए बहुत ओपन होते थे। आप देखें कि अभी भी वो कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो दे आइदर वांट टू लिंक इट टू बहू और लिंक इट टू दामाद कि आपके यहाँ कुछ होगा, ऐसा इसलिए होगा कि वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी ये सब हो सकता है, या इन कारणों से भी हो सकता है जिनके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं है कि इसका कारण क्या है। तो बेसिकली वो एक्सेप्टेंस दिलाना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी टीचर थे, एंड मेरे
फादर भी काफी अच्छी पोस्ट पे थे, तो वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने दुनिया बहुत देखी थी। तो उनको जब मैंने लिटरेचर प्रोवाइड किया तो उन्होंने खुद उसको पढ़ा, खुद पढ़ के समझा कि अच्छा इस तरीके से ये हो सकता है। एंड फिर जो हमारे घर में नेहल के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना, बिकॉज हम मेरी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, और मेरे इन लॉज के तरफ भी उनके भाई बहन हैं, वो सबके लिए ये सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा बन गया। क्योंकि नेहल लव्स टू बी अराउंड पीपल, वो बहुत ही खुश होके सबसे कनेक्ट होना चाहती है। तो घर में एवरीबडी वॉज वेरी पॉजिटिव फॉर हर। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी ग्रोथ को बहुत हेल्प मिली, क्योंकि हम हर साल भोपाल जाते रहे, परिवार वालों से कनेक्टेड रहे। एंड वंस व्हाट्सएप आ गया तो व्हाट्सएप इज अ लाइक ब्लेसिंग फॉर नेहल। वो अपने सभी रिलेटिव्स से व्हाट्सएप पे, डिस्टेंट रिलेटिव्स से भी व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपने स्टोन पेंटिंग्स के फोटोग्राफ डालते हैं। एंड पीपल सब परिवार के लोगों के लिए वो एक एकदम वो है, एक मतलब एक यस, मतलब किसी से सबसे ज्यादा प्यार है, किसी को गिफ्ट भेजना है, किसी का बर्थडे नहीं भूलना है, तो वो नेहल है। Very beautiful, Nehal. And so, I mean, like, I don't know, my heart goes out for both of you, Nehal and Seema ji. यहाँ पे मेरे दो सवाल आएंगे, वो बहुत थोड़ा लंबा आंसर है, इसलिए सेकंड सवाल नेहल की पेंटिंग से जुड़ा है, वो मैं अभी आपसे पूछूंगी। लेकिन पहला सवाल, जैसे कि आपने कहा, यू वर वेरी लकी, यू हैड अ फैमिली जो वेल रेड थी, जिन्हें आइडिया था या जिन्होंने प्रयास किया समझने का। लेकिन क्या कभी आपने अंधविश्वास में पढ़ के कोई पूजा झाड़ा इस तरह की चीजें भी करवाई शुरुआती दौर में, जब आपको नॉलेज नहीं थी कि कैसे भी ठीक हो जाए मेरा बच्चा? देखिए, होता क्या है कि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए ना, तो हमने भी शुरू में बहुत शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की। हमने पूजा करवाई, होम्योपैथिक दिया, एलोपैथिक दिया, तरह तरह की चीजें हमने भी की, हाई विटामिन थेरेपी की। अभी तो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फ्रॉड चीजें आती हैं। उस समय भी जितनी फ्रॉड चीजें अवेलेबल थी हमने सब ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद हमें समझ में आया कि नहीं, ये सब कुछ भी हेल्प नहीं करता है। एंड जो ओनली चीज विच हेल्प्स इज थेरेपी। आप बच्चे के साथ में थेरेपी करते जाते हैं तो ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। कोई भी और चीज, कोई भी और ताकत जो है बच्चे की सहायता नहीं कर पाती है। तो आप घर में माहौल खुशनुमा रखें और थोड़ी मेहनत करते रहें तो प्रोग्रेस मिलती है। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा कई पेरेंट्स जो है वो पूरा थेरेपिस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मैंने 2,000 रुपए फीस दी है, अभी तो बहुत फीस दिया, वो तो थेरेपिस्ट कोई है जो करना है करना है। ऐसा नहीं होता है। थेरेपिस्ट विल वर्क ओनली फॉर 1 आवर विद योर चाइल्ड। पूरा दिन आपको काम करना है, आपको होम प्रोग्राम लेना है, आपके बच्चे के साथ काम करना है, उसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करनी है। जिस तरीके से आपको थेरेपिस्ट गाइड कर रही है, आपको वो पूरा काम करना है। जी, तो ये जो पेरेंट्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज अपने मन तक सीमित मत रखिए, उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए। प्रोग्राम के अंत में नेहल और सीमा उन सवालों के जवाब देंगे। दूसरी चीज यहाँ पर सीमा जी, जो हम जानना चाहेंगे कि मेरे मन में जो सवाल आ रहा है कि बार बार घूम फिर के आ रहा है कि थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी मेरी समझ है, बॉम्बे, दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों में थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, जिनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है और बहुत सारी एडवांस थेरेपीज भी उपलब्ध हैं। लेकिन अभी भी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टियर 2 टियर 3 सिटीज में इतनी अवेयरनेस नहीं है और इतनी ज्यादा थेरेपीज नहीं है। तो क्या आप मेन 2-4 थेरेपीज के नाम भी बता सकते हैं? एंड ऑफ कोर्स, जिनके मन में सवाल है वो डॉक्टर सुखबीर कौर, अपना नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दें, उनसे जुड़ सकते हैं, जो कि आपको फर्दर डिटेल्स दे सकेंगे थेरेपीज के ऊपर। तो आप चंद थेरेपीज के नाम बताना चाहेंगे सीमा जी? देखिए, सबसे पहले तो था बिहेवियरल थेरेपी, जहाँ पे जो बच्चे को किस तरीके से सोशल बिहेवियर, मतलब उसके उसके ओवरऑल पर्सनालिटी पे जिसमें काम होता है, जहाँ पे जिसमें बहुत ब्रॉड टर्म है ये, इसमें बच्चे, क्योंकि बच्चे की एंजाइटी पे इसके थ्रू काम होता है।
तो उसको हम बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। देन वन इज ऑक्यूपेशन थेरेपी। ऑक्यूपेशन थेरेपी में बच्चे की सेंसिटिविटी की तरफ काम होता है, क्योंकि मैंने जैसे आप बताया कुछ बच्चों को सुनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब वो बहुत सारी आवाजें उन्हें आती है, तो उनकी ऑडियो थेरेपी होती है। कुछ लोगों को टच की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा मोटर टोन, जो टोन होती है बॉडी के मसल्स की, इन बच्चों की कमजोर होती है। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी की में तरह तरह की कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे का आई कांटेक्ट, बच्चे का मसल टोन, ये सब खेल खेल में इम्प्रूव होता है। बहुत सारे उसके टूल्स हैं, एंड वो सब आपको ऑनलाइन, उस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आजकल अवेलेबल हैं। अभी आज के पेरेंट्स लकी हैं कि हर चीज वीडियो फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में अवेलेबल है। they can see, even अगर वो tier 1 tier 2 cities में है, then also they can see. Then other is academics. एकेडमिक्स में जैसे बाकी बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं, उनसे कुछ अलग तरीका होता है हमारे बच्चों को पढ़ाने का। तो अच्छा, वो भी स्पेक्ट्रम में हर एक बच्चे का अलग होता है। जैसे नेहल सेड कि उसको हिस्ट्री सिविक्स कठिन लगते थे, बट साइंस इजी लगता था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें साइंस नहीं समझ में आता है, बट दे आर एबल टू रिलेट टू हिस्ट्री सिविक्स, दे आर एबल टू, बहुत अच्छे जियोग्राफी में होते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम में हर एक बच्चे का अलग स्किल है। उसके पेरेंट्स को ये जज करना पड़ता है कि वो किस में आगे बढ़ सकता है, उस पे कौन सी ट्रिक चलती है याद कराने के लिए। वो सब एकेडमिक्स में कवर होता है। बहुत सारे पजल गेम्स होते हैं आजकल, मैचिंग के पजल और बोर्ड गेम्स, बेसिकली तरह तरह के होते हैं। वो बोर्ड गेम्स इन बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं। स्पेशली मैंने नेहल के साथ में देखा, उसका सिटिंग स्पैन इम्प्रूव हुआ, उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई, उसको पढ़ाना समझाना उन गेम्स के साथ में बहुत इजी पड़ता था। तो जब आपके बच्चे छोटे हैं तो यू कैन गो फॉर ऑक्यूपेशन थेरेपी, यू कैन गो फॉर बिहेवियरल थेरेपी, एंड यू कैन सर्च एंड बाय मोर, एंड दीज गेम्स आर वेरी चीप। मैं बोलती हूँ आप सस्ते से सस्ता गेम खरीदिए, आप खुद बनाइए, पिक्चर्स काट के 2 बुक खरीद लीजिए, दोनों बुक के एक से फोटो होंगे, ठीक है, वो उसके कार्ड बना लीजिए एक के, और बच्चे को मैचिंग के लिए दे दीजिए मिक्स करके, ठीक है ना, कि जैसे कि दोनों के सेम सेम कार्ड है, सब मिक्स कर दीजिए, बच्चा मैचिंग करेगा। ये सब बेसिक स्टेजेस से अपना इनोवेटिव तरीके से आप बढ़ते जाएंगे एंड टिप्स लेते जाइए। कीप योरसेल्फ ओपन। हमेशा जब कोई दूसरा कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ सिखा रहा है, तो मैं तो ये कर चुकी हूँ, मेरा बच्चा तो ये कर नहीं पाता है, आप भी का कर लेता है, ये सोच रख के नहीं करना है। जो करा उसको टिक करिए, उसका नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाइए। जो नहीं किया थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर आगे बढ़िए, मतलब छोड़ मत दीजिए उसको। एब्सोल्युटली, डॉक्टर तिवारी का परसिस्टेंस देखकर आप सब भी मोटिवेट हो रहे होंगे, और मैं तो यही कहूंगी कि पैसा कोई बैरियर नहीं है। मुझे पता है ये थेरेपीज कई शहरों में महंगी, और जैसे कि उन्होंने कहा इंटरनेट पे हर चीज सही नहीं है, पर बहुत कुछ आज इजी है हमारे लिए। तो हम ये चाहेंगे कि आज के इस मंच के माध्यम से जो भी डिटेल्स अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर कौर के पास वो डिटेल्स आपको मिलेंगी। डॉक्टर सीमा जी उन्हें वो डिटेल्स दे देंगी। आप डॉक्टर कौर के साथ जुड़ सकते हैं और डिटेल्स इस बारे में ले सकते हैं। नेहल, अब तुम्हारे पास आए भाई, तुम सिर्फ पढ़ाई में ही तुरम खान नहीं हो। हमें पता चला है कि जैसे तुमने कहा तुम स्विमिंग भी करती थी, म्यूजिक की भी शौकीन थी हो, और साथ ही तुम बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती हो। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में नेहल की स्टोन पेंटिंग्स पड़ी हैं। नेहल, कुछ पेंटिंग्स दिखा भी दीजिए। ओह, शी डज लवली पेंटिंग। रिवर स्टोन है ये, दिस इज रिवर स्टोन, ऑन दिस इज द पेंटिंग डन बाय हर। तो आप अपने बच्चे को, जैसे कि शुरू में ही डॉक्टर कौर ने कहा, जरूरी नहीं है पढ़ाएंगे ही, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो ब्यूटिफुल नेहल, दे आर रियली प्रिटी। ये पेंटिंग्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट एड्रेस भी डॉक्टर कौर से आप ले सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए सीमा जी। जी, उसका नेहल का इंस्टा पेज भी है और नेहल का फेसबुक पेज भी है। तो अगर कोई देखना चाहे तो वहां से उसकी पेंटिंग देख चुके हैं। एंड अभी वो करीबन 1100 पीसेस अक्रॉस द ग्लोब वो भेज चुकी है। मींस पीपल ऑर्डर इट एंड शी हैज ऑलरेडी सेंड। तो वो उनका पैशन है, मतलब बहुत खुश होके करते हैं।
Until now, my 1082 pieces got sold. So beautiful, Nehal, and you knew the exact number. That shows you are a very good learner and an entrepreneur. Nehal, अब मेरे मन में आ रहा है, अर्नेस्ट एंड यंग जैसी कंपनी में बड़े अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते, तो तुम्हारा जब इंटरव्यू हो रहा था, हाउ वर यू फीलिंग? और मम्मा पापा का सपोर्ट कैसा रहा है हमेशा? और ऑल्सो अबाउट योर लिटिल ब्रदर और सिस्टर, आई वांट टू नो अबाउट हर एंड हिम, whoever is there, the second child. I also felt included, not left out when I was working at EY, and we would hire you as I am a very hardworking and independent girl, and I do not fight, and I spent my own money with the help of GPay, and we are a part of NCOE team, but work is assigned individually. But yeah, I don't have words. I think this girl has put a closure to me. And जिन किसी का भी अभी माइक ऑन है, नेहल और मेरे अलावा, प्लीज म्यूट पे डालिए. You are साडी बोतल डिग गई. सुनील जी, चालू जी, अपना माइक म्यूट पे डाल दें. ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟ ਗਈ. Sunil ji, Shalu ji, can you please put your mic on mute, please? Can I request everybody to? Yes, sorry. Yes, thank you so much. नेहल, इससे पहले आप कुछ और कोई मैसेज देना चाहते हो सबको? कुछ बोलना चाहते हो? Message is that disabilities do not disable any individual, but absence of teams does. Neurotypical people do not treat person in an inferior way. They are less respective. They are lesser in abilities. They are not lesser in abilities, but are just different. I totally agree, नेहल. आप किसी से कम नहीं है. In fact, सबसे बहुत ज्यादा है. And this is a huge round of applause for Seema ji, her husband, her whole family, and also for Nehal. Seema ji, tell us something about your second child. That Nehal will tell. I have my younger sister Vedika. She is preparing for a NEET exam. I love Vedika so much, and when I'm not well and I become sad, then Vedika cares for me, and when Vedika is not well, then I care for you. I love my younger sister so much. So beautiful, Nehal. You are beautiful inside out. My heart goes out to you. I'm saying it again and again. सीमा जी, संघर्ष संग हर्ष, ये किताब भी आपकी कल ही लॉन्च हुई है, अगर मैं सही समझी हूँ. उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे लिखी है आपने और क्या है इसमें? एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मैं FFA के पार्ट हैं. जो हम लोग जो पेरेंट्स हैं, जो नए डायग्नोसिस होता है, जो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, उनको थेरेपिस्ट हमारे नंबर दे देते हैं, एंड पेरेंट्स स्पीक टू अस, एंड जो हमारा थोड़ा बहुत नॉलेज है वी गाइड देम. तो उस सिलसिले में मैंने भोपाल में एक सेशन लिया था. तो वहां पे एक फीडबैक मुझे आया था कि जो हमारे पास हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है. देन आई रियलाइज्ड कि जब नेहल का डायग्नोसिस हुआ था तो मैंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी थी, बट एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश, एंड सारा का सारा जो फॉरेन पे जो चीजें हैं, जो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, उस पे बेस्ड था. एंड दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ आता था, वो जो मैंने बताया कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो समझ नहीं पाते थे कि ऑटिज्म क्या है. तो मुझे क्लिक किया कि मैं ही क्यों ना एक ऐसा कुछ कर दूं कि कुछ कर सकूं जिससे मैं खुद को खुद की अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को अपने शब्दों में, आसान शब्दों में लिखने की कोशिश करती हूँ. तो उसमें अनुपम मेरे हस्बैंड हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा. उनका सपोर्ट तो थ्रू आउट दी लाइफ हमारा पूरा एक यूनिट की तरह ही हम लोग काम करते रहे. तो उसमें मैंने ये बुक लिखी, संघर्ष. तो इसमें बेसिकली हमारी जर्नी है, हमने क्या गलतियां की जिससे दूसरे ना करें, वो सब मैंने लिखा है. साथ में कैसे क्या मिथ्या है ऑटिज्म के बारे में, क्या तथ्य है, उसका भी थोड़ा जिक्र है. तो नेहल के पैदा होने के पहले से ये कहानी चालू होती है,
और कुछ सवालों पे ये कहानी खत्म होती है कि आगे क्या। तो ये कल ही हमने लॉन्च की है। इट इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट ऑल्सो। Beautiful. This is तो this बेसिक is पर्पस है कि मतलब अगर किसी पेरेंट को ये बुक थोड़ा भी मोटिवेट कर पाई तो इस बुक को लिखने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। being an author myself, I know what it takes to write a book, and to put your thoughts in words is not easy. So for a lot of congratulations to Nehal and Seema ji, both of you. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। डॉक्टर सुखबीर कौर ने वहां पर नेहल का इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक पेज भी डाल दिया है। साथ ही डॉक्टर सुखबीर कौर के नंबर्स भी हैं, आप उनसे फर्दर कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आयनात बहुत ही कॉन्शियसली वर्क कर रहा है इस किस्म की ट्राइब को डेवलप करने में, ताकि आप अकेला महसूस ना करें। केयर फॉर केयर गिवर्स एक दूसरे से जुड़कर संबल पाए, एक दूसरे के साथ बढ़कर आगे बढ़े, कुछ प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस कर सके, बिकॉज एट लार्ज वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट एंड एवरी चाइल्ड is unique and we need to identify the unique you in every person around us. I would also like to talk about Art Asha India here. ये एक प्लेटफॉर्म है जो हैप्पीनेस और हेल्थ प्रमोट करता है थ्रू आर्ट. It is one of the basic platforms established by Mr. Prakhar Chopra. That's my son. He's a 16-year-old. तो अगर आपके पास ऐसे कोई आर्टिस्ट भी हैं जो कोई चाहते हैं कि उनका काम शोकेस हो, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं डॉक्टर सुखबीर कौर के माध्यम से. So any questions? Yes, since we are a small group, Nidhi has raised her hand. Dr. Sukhbir Kaur, can we take her question in person? Can she unmute and ask? Yes, please go ahead. Yes, Nidhi. Thank you very much, Dr. Sukhbir, and thank you, Seema ji, Nehal. I have no words to say. I just want to show Nehal and Seema ji something. Sukhbir has contributed a lot in our children meditation course program. नेहल के बहुत सारे स्टोन्स हमारे इस ग्रुप के बच्चों के पास पहुंचे हैं और उसमें से एक सुखबीर ने मेरे को गिफ्ट किया है. आई डोंट नो, आई रियली टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भूल गई थी कि आज 30 तारीख है. जस्ट 5 minutes बैक आई स्विच्ड ऑन माय वाईफाई. मैंने सुखबीर का मैसेज देखा. आई रिमेम्बर्ड कि आई नीड टू ज्वाइन. देयर इज नथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग कि मैंने कुछ बनाया है, मैं आपको दिखा रहा कुछ चाहती हूँ. आई जस्ट वांट टू शो इस पिक्चर को हम वो कैसे कर सकते हैं. ओके, मैं शायद नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ. दिस इज माय टेबल. वाओ, see, this is my table and this is the most precious thing in my room. My Guruji's picture. I have my Ramayana along with this and my writing diary. Here comes the stone which Nehal has sent through Sukhbir to you. And this is lying immediately. so nice of you, so nice of you. नेहल आप लोगों के दिल में घर कर चुके हैं और घर में दिल कर चुके हैं. ये नेहल का स्टोन मेरे गुरुजी के चरणों में है और आई विल रियली विश ऑल द टाइम, मैं सिंसियरली कह रही हूँ, मैं ये विश करती रहती हूँ कि नेहल को वो सब कुछ मिले जो वो डिजर्व करती है और जितनी मेहनत वो कर रही है और जितनी मेहनत सीमा जी आपने करी है. एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हम क्यों कहते हैं कि कोई भी चीज का डिसऑर्डर है. क्या हम लोग जो बिल्कुल नॉर्मल है, हम में कोई डिसऑर्डर नहीं है. डिसऑर्डर तो हम में भी है किसी न किसी फॉर्म का. ये थॉट लेवल में कितने डिसऑर्डर्स हैं, हम उनके साथ जी और हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं. तो इसीलिए प्लीज नेहल, गॉड ब्लेस यू. एंड आई वुड रिक्वेस्ट सीमा जी की अगर आप नेहल को थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन भी कराने की कोशिश करें तो शायद इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट टू हर आल्सो एंड टू यू आल्सो. थैंक यू. I'll definitely try. पहले मैं सीखती हूँ फिर इनको सिखाती. जी जी बिल्कुल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू नेहल. Thank you. Thank you.
और कोई कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच निधि। और कुछ कोई पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं? Dr. Kaur, on a closing note, I think she is doing a wonderful job. ये एक वो साइलेंट चेंज मेकर हैं जो चुपचाप चुपचाप काम करते रहते हैं. डॉक्टर कौर इज डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क एंड यू नो बहुत किताबें इन्होंने IIM अहमदाबाद से ये हैं, लेकिन आज एक चेंज मेकर के रूप में लगी हुई हैं. हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ डिफरेंस शी इज मेकिंग. सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हर. डॉक्टर कौर, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स में कहना चाहेंगे? It's actually a great pleasure, and I think I have a lot of gratitude for both of them that they are there in our platform. और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि ये चीज संभव हो पाई, क्योंकि ये मन तो मेरा बहुत था ऑर्गेनाइज करने का, बट लेकिन हाँ ये हो पाया. सो सीमा जी से मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, हम सिर्फ ऐसे ही फोन पे और बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं. और मेरा बड़ा मन है कि इन दोनों से मेरी 1-to-1 एक्चुअल में रियल लाइफ में भी मुलाकात हो जाए. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड सीमा जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी नई किताब के लिए. और मुझे पता है कि ये बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों के दिल के करीब ऑलरेडी पहुंच चुकी है. तो once again, congratulations to you. Thank you. And Thank you. a lot for being on this platform. Nehal, I'm so proud of you. Thank you. Thank you so much. So if we Welcome. don't have any questions, we would like to close the session, but we really look forward to your feedback. We look forward to your suggestions. And soon, Dr. Kaur will be launching her tribe. So join the tribe, join the group. Let's become एक एक बूंद से समंदर बनता है. तो एक एक जना भी एक एक शहर में अगर आई नाद करे, अंतर ध्वनि को स्ट्रॉन्गर करेगा, तो बहुत लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा. Very, very grateful to Nehal and Seema Tiwari ji for joining us today, giving their valuable time. Also, equally grateful to Baljit ji, I don't know who's 1+ EB2101, Neha Jain, Sheila, Nidhi, Lakshmi, Kamaljeet, Richa, Megha, and Sumit, and Mr. Kshetrapal. जो सब आज अपना समय जिन्होंने दिया, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद. और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आयनात को फॉलो कर सकते हैं और किसी से इसके बारे में जिक्र जरूर करिए. आपको नहीं पता कि आपकी बात से, आपकी वो 2 शब्दों से उनके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Good day. Good day. It Thank was nice meeting you. Same here. Wonderful meeting you, Nehal. Thank you. Love to you. Thank Much you. love. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye.